हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी निचोड़ बाय नीट काका जी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के दूसरे चैप्टर की तरह इस चैप्टर से भी हर साल 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन, इट इज़ द वॉलंटरी मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज इन लोकेशन। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, बोथ आर इंटरलिंक्ड. For example, in paramecium, cilia helps in the movement of food through cytopharynx and in locomotion as well. Similarly, Hydra uses its tentacle to capture prey and also for locomotion. Limbs helps to change body posture and for locomotion. टर्म मूवमेंट एंड लोकोमोशन है वो दोनों लगते ही कैसे हैं पर वो सिनोनिम्स नहीं है, क्योंकि लोकोमोशन एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मूवमेंट है जिसमें हमारा चेंज इन लोकेशन होता है। अगर लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है किसी भी बॉडी पार्ट्स का तो वो मूवमेंट में आएगा, अगर चेंज इन लोकेशन हो रहा है तभी वो लोकोमोशन में आएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे सेम ऑर्गेनल्स मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों में ही हेल्प कर रहा है, जैसे कि पैरामीशियम, हाइड्रा और हमारा लिम्स। सो ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो हमारे बॉडी में 3 मेजर टाइप का मूवमेंट होता है। फर्स्ट इज एमीबॉइड मूवमेंट by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. Cytoskeletal elements like microfilaments also helps in this. Example, macrophages and leukocytes. तो जैसे कि अमीबा में सीरोपोडिया का स्ट्रीमिंग होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी कुछ एमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और वो कहाँ मिलते हैं? हमारे मैक्रोफेजेस में एंड ल्यूकोसाइट्स, दैट इज WBCs. Next is ciliary movement. It occurs by cilia. Example, ciliary movement occurs in trachea to remove dust particles and foreign substances, and also in oviducts. Now what is oviducts? It is fallopian tubes. The ciliary movement here is used for the passage of ova. So 2 main example है ciliary movement का. First हमारा trachea and second is fallopian tubes. Third, muscular movement. It occurs by muscles. Example, movement of limbs. अब एक और टाइप का मूवमेंट होता है which is called as flagellar movement. So it helps in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and in locomotion of protozoans like Euglena. So flagellar movement का 3 important example है. First, in the swimming of spermatozoa. Second, in the canal system of sponges, and third, in the locomotion of protozoans. Now, human muscular system. So it includes muscles which are mesodermal in origin. Muscle constitute 40 to 50% of the body weight. Muscles have 4 main properties और ये तुमको याद होना चाहिए. First is excitability, then contractibility, extensibility and elasticity. Again, excitability, contractility, extensibility and elasticity. Based on location, muscles are of 3 types. So muscles को हम 3 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड इसका क्राइटेरिया क्या है? लोकेशन. फर्स्ट इज skeletal और striated muscle. Second is visceral or non-striated muscle, and the third one is cardiac muscles. So skeletal muscles, it is attached to the skeleton. Here striations are present. It is voluntary, मतलब हम इसको अपने कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं. रिच इन ब्लड सप्लाई. फटीग मसल, मतलब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये मसल थक जाती है क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है. मल्टी न्यूक्लिएट एंड मोर माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ स्मूथ मसल्स. सो इट इज़ फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, दैट इज द सॉफ्ट ऑर्गन्स. द striations is absent here. It is non-voluntary in nature. Blood supply is poor. It is non-fatigue, uninucleated and less mitochondria. Similarly, cardiac muscles, it is found in the heart valves. Here striations are present. It is again involuntary in nature. Rich blood supply, non-fatigue, uninucleate and more mitochondria. So अगर तुम ध्यान से देखो तो कार्डियक मसल के कुछ फीचर हमारे स्ट्रिएटेड मसल से मैच कर रहे हैं और कुछ फीचर नॉन स्ट्रिएटेड मसल से. जैसे कि अगर स्ट्रिएशंस की बात करें तो कार्डियक मसल हमारा स्केलेटल मसल से रिजेंबल कर रहा है, दोनों में स्ट्रिएशन है. और अगर हम यहाँ पे फटीग नेचर की बात करें तो ये हमारा स्मूथ मसल से रिजेंबल कर रहा है. सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक डेटा तुमको याद होना चाहिए. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स. So skeletal muscle is made up of a number of muscle bundles, also known as fascicles, which are held together by a collagenous connective tissue layer called fascia. Important line, the fascia is a collagenous connective tissue layer. So इस डायग्राम में तुम देखो जो मसल होता है उसमें बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं. तो ये जो बड़े बड़े बंडल दिख रहे हैं ये सारे हमारे मसल बंडल्स हैं जिनको हम फेसिकल्स भी बोलते हैं, और ये सारे फेसिकल्स अटैच्ड हैं बाय अ कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच इज़ कॉल्ड फैशिया. अब एक मसल बंडल और फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, और हर मसल फाइबर के वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं और अंदर के कंटेंट को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. अगेन आई रिपीट, हमारे जो बॉडी में मसल्स हैं उसमें बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मसल बंडल्स और फेसिकल्स. सारे फेसिकल्स अटैच होते हैं बाय अ कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैशिया. अब एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हो सकते हैं. उस मसल फाइबर के वॉल को हम कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहेंगे सार्कोलेमा, और उसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म. अब ये सारे मसल फाइबर्स में रिच ब्लड सप्लाई होता है. दैट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर फाउंड अराउंड देम. Each fascicle, that is muscle bundle, contains many muscle fibers or muscle cells
अब ये जो यहाँ पे दिया गया है मसल सेल्स कि मसल फाइबर्स को मसल सेल्स भी कहते हैं, ये एनसीईआरटी में अगर तुम देखो तो लास्ट में जो समरी दिया हुआ है वहाँ पे इस टर्म का यूज़ किया गया है, दैट मसल फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज मसल सेल्स। सो ये भी तुमको ध्यान में रखना है। मसल फाइबर्स आर लाइंड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म विच इज़ द साइटोप्लाज्म। ईच मसल फाइबर कंटेन्स मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। अब ये जो एक मसल फाइबर तुमको दिख रहा है इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। Each myofibril has alternate dark, that is anisotropic or A band, and light striation, that is isotropic or I band. This is due to the presence of two fibrous contractile protein, that is thin actin filament and thick myosin filament. I band contains actin, A band contain both actin and myosin. They are arranged parallel to each other. A band bears a lighter middle region that is called H band, formed of only myosin. A thin darker line, that is M line, runs through the center of H zone. The I band is bisected by a dense dark band called Z line. Region between two Z lines is called sarcomere. They are the structural and functional unit of a muscle. So ये इतने बड़े थियोरेटिकल पैसेज को हम इस छोटे से फ्लो चार्ट से समझने का कोशिश करते हैं। तो मसल्स में हमारे बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं जिनको हम फेसिकल्स कहते हैं। हर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स हैं। अब हर मसल फाइबर्स के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं जिनको हम मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं। अब हर मायोफिब्रिल में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है। ये सारे जो मैंने लगाए हैं यहाँ पे ऑर्डर्स, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नीचे वाला ऊपर वाले के अंदर आता है। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, उसके अंदर मायोफिब्रिल, उसके अंदर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड। अब जो लाइट बैंड है उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड और डार्क बैंड को हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड। आई बैंड को हम, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं इन शॉर्ट। सिमिलरली एनाइसोट्रोपिक बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं। अब ये आइसोट्रोपिक बैंड दैट इज लाइट बैंड क्यों है? इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटीन होता है, दैट इज एक्टिन। एंड सिमिलरली ये जो हमारा एनाइसोट्रोपिक बैंड है यहाँ पे हमारा दोनों प्रोटीन होता है, बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये रहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई बैंड एंड ए बैंड। ये डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये देखो, ये है हमारा एक्टिन, ये रहा हमारा एक्टिन फिलामेंट्स एंड उसके बीच से ये सेंटर में पास करता है हमारा मायोसिन फिलामेंट्स। और जो एक्टिन फिलामेंट है उसके सेंटर से एक थिन फाइब्रस लाइन पास हुआ जिसको हम कह रहे हैं जेड लाइन। सिमिलरली जो मायोसिन फिलामेंट्स है उसके भी सेंटर से एक लाइन पास करता है। यहाँ पे दिखाया नहीं गया, देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो मायोसिन फिलामेंट्स है उसके सेंटर से जो लाइन पास करता है उसको हम कहते हैं एम लाइन। अगेन ये हमारा मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स कैसे अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है। ये रहा हमारा एक्टिन और उसके बीच में ये रहा मायोसिन। I band is bisected by a line called Z line and similarly the A band is dissected by a line called M line. Again एक important बात, देखो ये जो हमारा A band है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके सेंटर में देखो एक ऐसा स्पेस पाया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ हमारा मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। अगेन आई रिपीट कि जो हमारा A band है उसके सेंटर में एक ऐसा स्पेस पाया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। तो इस सेंटर वाले स्पेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं एच जोन। ये एच जोन से भी बहुत ही बार क्वेश्चन आया है। डायरेक्टली वो तुमसे इसका डेफिनेशन पूछ लेगा, नहीं तो इसका लोकेशन पूछ लेगा। तो तुम्हारा ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि हमारा दो जेड लाइन है। जेड लाइन क्या था? जो एक्टिन फिलामेंट को सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो हमारा दो जेड लाइन है उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर एंड इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगेन व्हाट इज सार्कोमेयर? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सो जो हमारे दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, उसका क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो अब हम देखने जा रहे हैं। सो एक्टिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन्स दैट इज कॉल्ड एफ एक्टिन्स विच फॉर्म्स अ डबल हेलिक्स। सो जो एक एक्टिन फिलामेंट्स है उसमें दो एफ एक्टिन्स होते हैं दैट इज फिलामेंटस एक्टिन, जो कि एक दूसरे के अराउंड रैप करके एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन एंड जी एक्टिन। अगेन अब वो जो फिलामेंटस एक्टिन है वो भी पॉलीमर होता है और उसका मोनोमर क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन। तो ये डायग्राम में देखो, ये हमारा ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये ग्लोबुलर एक्टिन है। ये सारा ग्लोबुलर एक्टिन मिल के एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम कहते हैं एफ एक्टिन। और ऐसा दो एफ एक्टिन मिल के एक डबल हेलिक्स बनाएगा और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन कंटेन्स टू अदर प्रोटीन्स दैट इज ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। Two filaments of tropomyosin runs along the grooves of F-actin double helix. So ये जो हमारा एक्टिन फिलामेंट बना इसमें एडिशनल दो प्रोटीन भी हैं दैट इज ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोमायोसिन है ये इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लेंथ वाइज रन करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज ट्रोपोनिन।
So troponin has 3 subunits. It is seen at regular intervals on the tropomyosin. In resting state, a subunit of troponin masks the binding site for myosin on the actin filaments. So जो दूसरा important protein हमारा myosin है वो इस फर्स्ट वाले प्रोटीन दैट इज ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाया जाएगा. 2 प्रोटीन थे, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन. तो जो ट्रोपोनिन है छोटा वाला प्रोटीन वो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाया जाएगा. और जब मसल रेस्टिंग स्टेट में है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है उस टाइम अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन masks the active binding site for myosin on the actin filament. Myosin filament. So each myosin filament is a polymer of many monomeric proteins called meromyosin. जैसे कि एक्टिन एक पॉलीमर था, सिमिलरली मायोसिन भी एक पॉलीमर है और उसका मोनोमर क्या है, मेरोमायोसिन्स. सो अ मेरोमायोसिन हैज़ 2 पार्ट्स, हेवी मेरोमायोसिन HMM और क्रॉस आर्म्स. इट इज़ फाउंड इन द ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म्स. इट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स. एंड सेकेंड वन इज लाइट मेरोमायोसिन और LMM. इट इज़ फाउंड इन द टेल. जो हमारा मेरोमायोसिन है उसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, HMM और LMM. HMM और LMM. HMM हमारा कहाँ पाया जा रहा है, हेड एंड शॉर्ट आर्म. ये रहा हमारा हेड और ये आर्म है. तो इस पार्ट में हमारा HMM पाया जाएगा दैट इज़ हैवी मेरोमायोसिन. और जो हमारा लाइट मेरोमायोसिन है दैट इज़ LMM वो टेल में पाया जाएगा. अब ये रहा मायोसिन का एक डायग्राम. सो ये देखो, ये हमारा हेड है, इसमें 2 साइट्स है. फर्स्ट इज एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड सेकेंड इज ATP बाइंडिंग साइट. ऊपर वाला जो साइट्स है वो हमारा एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है और नीचे वाला जो साइट है वो ATP बाइंडिंग साइट है. ये हमारा हेड है, ये क्रॉस आर्म है, दोनों को मिला के हम कहते हैं HMM दैट इज़ हैवी मेरोमायोसिन. और ये जो लास्ट में हमारा है वो है टेल विच इज़ लाइट मेरोमायोसिन. देयरफॉर द ग्लोबुलर हेड इज़ एन एक्टिव ATPase एंजाइम एंड हैज़ बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन. मतलब ये जो हमारा हेड है इसको हम एज अ एक्टिव ATPase एंजाइम भी ट्रीट कर सकते हैं जिसमें 2 साइट्स है दैट इज़ बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर्स अकर्स बाय द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर द मायोसिन. सो जो हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो कहता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड करता है ओवर मायोसिन फिलामेंट्स. द स्टेप्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट, an impulse from CNS reaches the neuromuscular junction that is motor end plate via motor neuron. मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे इम्पल्स आएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन. और इम्पल्स कहाँ आएगा, तो आएगा इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जिसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं. अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है, तो इट इज़ द साइनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर. तो जो मसल फाइबर है उसका जो सार्कोलेमा है मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर जो मोटर न्यूरॉन है, इन दोनों के जो बीच का जंक्शन होता है, सिनेप्स होता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. और इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे CNS से इम्पल्स आता है. मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर इज कॉल्ड मोटर यूनिट. स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इसको तो तुम सिंपली रट लेना, दैट इज मोटर यूनिट इज इक्वल टू मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर. अगेन आई रिपीट, जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे इम्पल्स आएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन. और इम्पल्स कहाँ आएगा, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो इट इज़ अ सिनेप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर. और इस बात को तो तुम याद ही कर लेना, दैट इज मोटर यूनिट इज इक्वल टू मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स. नाउ द सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन. अब जब इम्पल्स आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे तो वहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में एक न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होता है that is acetylcholine. It generates action potential in the sarcolemma that spreads through the muscle fiber. It causes the release of calcium ions from the cytoplasmic cisternae into the cytoplasm. अब जब इम्पल्स आया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ इन द सार्कोलेमा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि स्प्रेड कर गया थ्रू आउट द मसल फाइबर्स. और इस इम्पल्स के कारण अब कैल्शियम आयन का रिलीज होगा फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस चीज़ का स्टोर हाउस है, आंसर इज कैल्शियम आयंस. तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस का रिलीज होगा इन द सार्कोप्लाज्म. नाउ दिस कैल्शियम आयंस बाइंड विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड अनमास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन. अब ये जो कैल्शियम आयन है इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर छोटा छोटा कुछ प्रोटीन था ट्रोपोनिन, उससे ये जाके बाइंड करेगा और उसको अनमास्क कर देगा. पहले वो मास्क था जिसके कारण मायोसिन फिलामेंट उस ट्रोपोनिन दैट इज एक्टिन प्रोटीन से नहीं जुड़ पा रहा था, पर वो कैल्शियम आयन जाएगा ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और उसको अनमास्क कर देगा, जिसके कारण अब मायोसिन फिलामेंट जाके एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो सकता है. अब ये रहा हमारा एक डायग्राम मसल कॉन्ट्रैक्शन का.
और ये इसका थ्योरी है। सो पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर डायग्राम को समझ लेंगे। यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस हेड binds to the active side on the actin to form cross bridge. This pulls actin filaments on both sides towards the center of A band. Actin filaments partially overlap so that the H zone disappears. तो कहानी ऐसे स्टार्ट होता है कि जो मायोसिन फिलामेंट था उसके हेड पे हम देखे थे कि एक एटीपी बाइंडिंग साइट था, तो वहाँ से एटीपी बाइंड करता है और जब वो एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा और उस एनर्जी का यूज़ करके वो मायोसिन हेड तुरंत ही बाइंड हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइड से और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। इस डायग्राम में देखो, ये हमारा मायोसिन फिलामेंट का हेड है, यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट था, तो यहाँ पे जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ तो हमारा एनर्जी रिलीज़ हुआ और उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए ये मायोसिन फिलामेंट का हेड बाइंड कर गया एक्टिव एक्टिन साइट पे और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब इस क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा स्लाइडिंग और रोटेशन, जिसमें हमारा एक्टिन स्लिप करेगा मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। यही हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और उसके बाद जब इस साइड पे एक दूसरा एटीपी आके बाइंड करेगा, पहला एटीपी बाइंड किया तो जो एनर्जी मिला उससे हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ और रोटेशन हुआ। अब ये साइड खाली हो चुका है, देखो ये हमारा एटीपी और फॉस्फेट रिलीज़ हो गया, तो अब इस साइड पे दूसरा एटीपी बाइंड करेगा और जैसे ही यहाँ पे दूसरा एटीपी बाइंड करेगा ये क्रॉस ब्रिज हमारा ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा एटीपी का अगेन हाइड्रोलिसिस हुआ तो फिर से ये एनर्जी रिलीज़ होगा और ये साइकिल रिपीट होगा, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, देन स्लाइडिंग, रोटेशन और ये सारा चीज़। तो ये था इसका कंसेप्ट और ये था डायग्राम। और जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो दोनों एक्टिन फिलामेंट है वो एक दूसरे के तरफ आते हैं, जिसके कारण सेंटर में जो गैप था एच जोन वो डिसअपियर हो जाता है। ये देखो इस डायग्राम में, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट्स है, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट्स है, ये बीच में मायोसिन फिलामेंट्स है जो डार्क में रिप्रेजेंट किया गया है और ये सेंटर वाला स्पेस हमारा एच जोन है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दो जो जेड लाइन है वो एक दूसरे के सामने आएंगे। देखो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम है। एच जोन का साइज रिड्यूस हुआ है क्योंकि दोनों जेड लाइन एक दूसरे की तरफ आए हैं और जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। Therefore, the Z line attached to actin is also pulled inwards, causes a shortening, that is contraction of sarcomere। वही मैंने भी बताया कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों Z लाइन एक दूसरे के सामने आएंगे, जिसको हम कहते हैं शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ sarcomere। I band gets shortened whereas A band retain the length। The most important question of this chapter कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, और यहाँ पे स्टूडेंट हर बार गलत करते हैं, 4 ऑप्शन तुमको बना के दे दिया जाएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, बोथ आई बैंड एंड ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द बैंड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा गलत कर ही देते हैं। तो याद रखना कि जब भी सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड शॉर्ट होगा पर जो ए बैंड है उसका लेंथ रिटेन रहेगा। डायग्राम में भी अगर तुम ध्यान से देखो तो जो हमारा ए बैंड है उसका साइज कहीं भी कम नहीं हुआ है, मतलब ए बैंड ऑलवेज रिटेन्स इट्स लेंथ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। Myosin releases ADP and phosphate and goes back to its relaxed state. A new ATP binds and the cross bridge is broken। वही मैंने अभी तुम्हें बताया कि देखो जब यहाँ पे मायोसिन से ADP और फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा तो स्लाइडिंग एंड रोटेशन होता है। जब इस साइड पे एक नया ATP बाइंड करेगा तो क्रॉस ब्रिज का ब्रेकेज हो जाएगा। A new ATP bind and the cross bridge is broken। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the above process is repeated causing further sliding। अब दूसरी बार जब ये ATP का हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर से एनर्जी रिलीज होगा और अगेन क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। लिखा है the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the above process is repeated causing further sliding। तो ये तो बात हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन का। पर अब एक क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन आखिर कब तक होगा और इसको अगर बंद करना है स्टेप को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को, तो हमें क्या करना होगा। तो when calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae or cytoplasmic reticulum, actin filaments are again masked। सारी कहानी को स्टार्ट किया था हमारा कैल्शियम आयन ने, क्योंकि ट्रोपोनिन ने तो एक्टिव साइट को मास्क करके रखा था, उसको अनमास्क ही किया था कैल्शियम आयन। तो अगर इस साइकिल को बंद करना है तो तुमको कैल्शियम आयन को बंद करना होगा। तो कैल्शियम आयन जब पम्प बैक हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव साइट में, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जो ट्रोपोनिन का हेड है वो फिर से मास्क हो जाएगा। एज अ रिजल्ट अब एक्टिन और मायोसिन बाइंड नहीं करेंगे और साइकिल जो हमारा है वो रुक जाएगा। तो when calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, actin filaments are again masked। As a result, Z line returns to their original position and it results in relaxation। The reaction time of muscle fibers varies in different muscles। Repeated activation of muscles led to the accumulation of lactic acid causing muscle fatigue। This is due to the anaerobic breakdown of glycogen in the muscles। मसल्स का एक्सेसिवली स्टिमुलेशन होगा तो उस टाइम लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है ड्यू टू द एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होगा और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा जिस कारण से मसल फटीग होगा।
अगेन एक छोटा सा डिफरेंस दिया गया है रेड मसल एंड वाइट मसल्स में, पर यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। ये भले यहाँ पे छोटा सा 4 लाइन है, पर फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो तुम इसको याद रखो अच्छे से। फर्स्ट इज रेड मसल्स, सेकेंड इज वाइट मसल्स। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू मायोग्लोबिन एंड इट इज़ वाइट इन कलर ड्यू टू लेसर मायोग्लोबिन। हेयर मोर माइटोकॉन्ड्रिया, वाइट मसल्स में लेस माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा रेड मसल्स एरोबिक मसल्स है, वाइट मसल्स एनारोबिक मसल्स है। रेड मसल्स में स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि वाइट मसल्स में हमारा फास्ट एंड शॉर्ट पीरियड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।